محفوظ پہ بات ہو چکی ہے، میرے پاس نمبر ہے، اگر چاہتے ہو میں انہوں نے ابھی کیا آپ کو. کہا، انہوں نے کیا لا کہا حول مرزا ولا قادیانی کے قوت بارے میں؟ الا باللہ. نہیں وہ کسی اور موضوع پہ بات ہوئی تھی ان سے. ہاں، مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں بات ہوئی ہے، نہیں چلے یہ بھی میں کر لوں گا ان سے. کر لیں گے. تو میں ابھی آپ کو سنا دیتا ہوں، یا پھر اسکانی بھائی بات کروا دیتے ہیں آپ کی ان سے. پوچھ لینا، سب کے سامنے پوچھ لینا نا. آپ نے میں ان سے عالم کی بات، میری بات سنیں، آپ نے عالم کا ذکر کیا، میں عالم کی بات پر اعتبار کروں گا. اس عالم کے کہنے پر آپ نے مسلمہ کو کذاب کہا. جی اب وہی عالم اگر مرزا غلام احمد قادیانی آپ کو وہ کذاب ریکارڈنگ کہے. لگا دیجئے تاکہ ہاں وہ سن سنیں، لیں. سن لیں ذرا. تحریک کے خلاف مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ، ان کی جہود اتنی عظیم ہے کہ جس کے لیے کئی کئی راتیں چاہیے، اور شیخ ثناء اللہ رحمہ اللہ کی قادیانی کے خلاف جہود کا تذکرہ ختم نہ ہو. صرف مولانا کی کتابیں ہی، شیخ الاسلام ثناء اللہ رحمہ اللہ کی کتابیں 40 کتابیں انہوں نے مرزائیت کے خلاف لکھی، 40 کتابیں. اور مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ مناظروں میں اسے اتنا تنگ کر دیا کہ مرزا غلام احمد تنگ آ کر، پریشان ہو کر اس نے ایک اشتہار شائع کیا اور اس کا نام لکھا مولوی ثناء اللہ کے ساتھ آخری فیصلہ. اور اس میں لکھتا ہے، مدت سے آپ کا رسالہ اہل حدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے. ہمیشہ آپ مجھے اپنے پرچے میں مردود، کذاب، دجال، مرشد کے نام سے منسوب کرتے ہیں. دنیا میں میری نسبت آپ نے یہ شہرت کر دی ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے، کذاب اور دجال ہے، اور اس شخص کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے. میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا ہے. یہ مرزا غلام احمد قادیانی مولانا ثناء اللہ مرسلی اہل حدیث عالم کو بذریعہ اعلان اور اشتہار یہ پیغام دے رہا ہے. میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھایا ہے، صبر کرتا رہا، مگر میں چونکہ دیکھتا ہوں کہ میں حق کے پھیلانے کے لیے مامور ہوں اور آپ بہت سے جھوٹ میرے اوپر باندھ رہے ہیں اور دنیا کو میرے طرف آنے سے روک رہے ہیں. مجھ پہ تہمتیں آپ لگا رہے ہیں جس سے بڑھ کر کوئی سخت لفظ نہیں ہو سکتا. اگر میں ایسا ہی جھوٹا ہوں جیسا کہ اکثر اپنے رسالے، اپنے پرچے، اپنے مضمونوں میں آپ لکھتے رہتے ہیں، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں آپ کی زندگی میں ہلاک ہو جاؤں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جھوٹے کی عمر لمبی نہیں ہوتی. آخر وہ ذلت و حسرت کے ساتھ اپنے دشمنوں کی زندگی میں ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ہلاک ہونا ہی بہتر ہے کہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے. مرزا کہتا ہے، اگر میں کذاب اور جھوٹا ہوں اور خدا سے جو میرا مکالمہ ہوتا ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے اور میں مسیح موعود نہیں ہوں، تو میں خدا کے فضل سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اللہ کی سنت کے مطابق کذاب کی سزا سے نہیں بچیں گے. بس اگر وہ سزا جو انسان کے ہاتھ میں نہیں مگر خدا کے ہاتھ میں ہے، جیسے طاعون کی بیماری، ہیضے کی بیماری آپ پر میری زندگی میں ہی وارد نہ ہوئی، تو میں خدا کی طرف سے نہیں. اگر مولوی ثناء اللہ کو ہیضہ یا طاعون مرزا غلام احمد کی زندگی میں نہ ہوا، جو بیماریاں انسانوں کے ہاتھ میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کہنا پھر یاد کر لینا، یقین کر لینا کہ میں جھوٹا ہوں گا. یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے کسی الہام کی بنیاد پہ نہیں کیا، بلکہ محض خدا سے فیصلہ چاہا ہے. اور میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے مالک، تو بصیر و قدیر ہے، علیم و خبیر ہے، میرے دل کے حال سے واقف ہے. اگر یہ دعویٰ مسیح ہونے کا محض میرے نفس کا افتراء ہے اور میں تیری نظر میں بھی جھوٹا اور فسادی ہوں اور دن رات افتراء کرنا میرا کام ہے، تو اے میرے مالک، میں عاجزی سے تیری جانب دعا کرتا ہوں. دعا سنیے مرزا غلام احمد کی. اہل حدیثوں کو گالیاں دینے والوں، ختم نبوت پر علماء اہل حدیث پہ کیچڑ اچھالنے والوں، اس جھوٹے نبی کا اصل مقابلہ کیا کس نے؟ فاتح قادیان. ہاں بھائی، جھوٹا نبی، اس جھوٹے نبی کا مقابلہ کیا کس نے؟ سن لی آواز؟ یہی بتاؤ. آپ نے کہنا ہے. اس عالم جو جھوٹا مسلمہ کو آپ نے کہا کذاب، وہی جھوٹا آپ نے مرزا غلام احمد کو کہنا ہے جو آپ کے اسی عالم نے کہا. مسلمہ کو میں نے کذاب کہا کیونکہ مسلمہ کا ماننے والا ایک بھی نہیں. اگر آپ نے نہیں 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 اور خیر، جو آپ نے اس لیے کہا، میری بات سنیں نا، ڈرامہ نہ کریں. آپ نے اس لیے کہا، آپ نے اس لیے کہا کیونکہ ایک عالم نے اس کو کذاب کہا. آپ نے یہی کہا نا، ابھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ڈرامے نہ کریں. اب یہاں اسی عالم نے مرزا غلام احمد کو جھوٹا کہا. مسلمہ کا کوئی ماننے والا ایک بھی پیروکار نہیں. اگر اچھا، آپ یہاں میری بات تو سنو، پوری ہونے دو. اچھا. آپ جن کے بارے میں کہہ رہے ہو، اگر میں نے ان کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو میں یہاں ان کی پیٹھ پیچھے نہیں کہوں گا، ان کے براٹ پہ جا کے
उनके मुंह पे ऊपर कहूंगा, ऐसे कब? मैं पीठ पीछे नहीं बोलता। कब कहोगे? मैं उनकी कितनी ब्रॉड पे जाता हूँ, वो मुझे उठाते ही नहीं है, 3-4 है, मैं जो भी करना होगा उनके मुंह पे आप कहूंगा। इधर कह दो, मैं अब आपकी आवाज पहुंचा देता हूँ रिकॉर्डिंग उनके नहीं, उनके ऐसे ऑन पीठ करके। पीठ पीछे बात करना अच्छी बात नहीं इधर है, मुंह मौजूद पे है कहना। उनके पैरोकार, ये सामने चौहान साहब बैठे हुए हैं, नहीं, चौहान साहब ना इन्हें तेरा नीचे में ट्रूथ ना सीकर दिल में, बैठा ना हुआ है, इन्हें नीचे स्टेरियन बैठे बैठा हुआ ने, है, थले बैठे ने। तारक ना ये ताहिर अमजद टोनी बैठा हुआ है। गैर ये इनका सिर पैर ही कोई नजर नहीं आ तो रहा भाई ना। नीचे 10 बंदे उनके बैठे हुए हैं, आप कह दो अगर कहना है तो। नहीं, अगर नीचे से आपने मैं उनके फेस टू फेस उनसे बात करूंगा, अगर मुझे उनके बारे में जो भी बात करनी है उनके मुंह पे इमजी साहब करूंगा। मुद्दे आपने ले लो, अब बात इमजी कोई नहीं साहब मुद्दे ले करनी, लो। आपने बात नहीं आपसे कोई पहले भी करनी। कह चुका था मेरी कि गल जैसे सुनो, आप मुझे कह रहे हो ना लान तान करो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैंने कुछ नहीं आपको कहा, आपने खुद कहा कि मैंने एक आलिम के कहने पर मुसलमा को कज़ाब कहा। उसी आलिम ने जिसने मुसलमा को कज़ाब कहा, उसी ने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को झूठा कहा है। आप मुसलमा को कज़ाब कहते हो, गुलाम अहमद कादियानी को क्यों नहीं कहते? तो मैंने उसको इसलिए कहा ना, उसका कोई पैरोकार नहीं, मानने वाला ओ नहीं। भाई पैरोकार जहन्नम में जाए, पैरोकार के क्या लेना देना है? तो मैं उनके मुंह पे जाके बोलूंगा ना, क्या वो उनके बड़े उनके तो आलम भाई हैं, जो हमें इससे गरज नहीं, आप मुंह पे बोलो या मुरब्बी पीठ है। पीछे बोलो। हम कोई बात मेरी नहीं, बात मुझे सुनो ना। उनके मुरब्बी का नंबर दो, मैं अभी कॉल करके उनको बोलता हूँ। क्या पीठ पीछे क्यों बोलूं? जो कहोगे आप, मैं जो भी उनके ऊपर आप एतराज उठाते हो, मैं उनके मुंह के ऊपर आपने बोलूंगा। यार हमारे एतराज को गोली मारो। आपने तौसीफ रहमान राशिदी के कहने पर गुलाम अहमद कादियानी को झूठा कहना है, बस। मैं क्योंकि देखो, उन्हीं के मैं जो उन्हीं भी के आप कहने कह पर रहे तो हो, तो ओ, सीफ उन्हीं के राशिदी कहने को- पर तो मुसलमा को कज़ाब कहा आपने। तो मुसलमा का मानने वाला कोई नहीं, अगर उसका मानने वाला होता तो यार मैं- ये क्या दलील है? मानने वाला कोई नहीं, मानने वाला कोई नहीं, ये क्या दलील है? तो बात मुंह पे कहना ज्यादा बेहतर होता है या और नहीं पीठ नहीं, पीछे? आप बेहतर ना करें, आप थोड़ा सा हल्का ही काम रख दें। आप इधर ही कह दें सबके सामने, देखिए किधर 50 लोग नीचे बैठ के सुन रहे हैं, सबके सामने कह दें 50 तो कि total जो नहीं है, तो इधर 62 है, उधर 50 नीचे उनके कैसे हो गए? मैं कहता हूं जितने भी या है उनका ना, बंदा ऊपर उठाए, उनका बंदा ऊपर आप उठाए। बंदा यार उनका उठा लो भाई ऊपर। आपने क्या कहना है? उनको उनके जो साथ आप- को मुनाजरा करना है जो भी आपने। आप एतराज उठा रहे हो, मैं उनके मुंह पे जा पे कहूंगा। आपने मेरी बात सुने, ओ भाई बात ये सुने, झूठा आदमी बोलता है। ओ बात वो सुनो आदमी मेरा, होता है। ओ यार गल सुनो, मेरे एतराज को गोली मारो। आपने जिस बंदे की वजह से मुसलमा को कज़ाब कहा, उस बंदे की वजह से आपने गुलाम अहमद को झूठा कहना, कज़ाब कहना, बस इतनी बात है। हाँ ठीक है, मैं जो भी उनको कहूंगा, जो भी आप कह रहे हो, उनके मुंह के उनके पद्दू के ये कम क्या दलील है? झूठा आपने कहना यहाँ झूठा, जहां आपने कहा मुसलमा को कज़ाब, हमारे सामने कहा है। तो अभी आपको मैंने बताया मुसलमा को मैंने क्यों कहा है। उनका तौसीफ बंदा रहमान ऊपर राशिदी की उठाए, वजह से। ऊपर उठाए बंदा उनका कोई भी तौसीफ ले, रहमान जमात राशिदी के कहने से आपने कहा है। आपने खुद बताया कि आपने तौसीफ रहमान राशिदी की वजह से कहा है मुसलमा को मैंने कज़ाब। आपको बताया कि तौसीफ और रहमान राशिदी से मैंने एक बयान सुना था मुसलमा कज़ाब के ऊपर। तो मैंने भी ये बयान ही सुनाया, मैं कह फोन तो गल कराइए। तो आप ये जो अभी आपने क्लिप सुनाया आधे मिनट का, ये मैं पूरा ये सुनूंगा इनका पूरा, फिर जो भी होगा मैं उनके जो जमात ये आधे मिनट का मैंने सुनाया है। ओ उनके ओ मुंह के ओ ऊपर जाके ओ कहूंगा। ओ मैं 3 कह मिनट चुका का, हूं। ओ चाचा 3 मिनट का क्लिप मैंने आपको सुना, 3 मिनट का ड्रामा बस पांच करो का कर ले, मैं इनके जमात अहमदिया की ब्रॉड्स पे जाता हूँ। यार। मैं उनके जमात ऊपर अहमदिया की यही सवाल ब्रॉड्स करता हूं। हमने आपको कब वो कहा मुझे कि आप ऊपर जमात नहीं अहमदिया उठाते। तो आप भाई कह रहे मेरी हो बात आधा सुने। तीतर, गीला तीतर, आधा तीतर, आधा बतेर। मैंने आपको कब कहा है कि आप उनकी ब्रॉड पे जाके कहो लानत? मैंने आपको ये कहा है कि आप, नहीं, कज़ाब दज्जाल, लानत नहीं। हाँ बिल्कुल नहीं, मैंने तो सिर्फ कज़ाब दज्जाल का, जो झूठा आपने मुसलमा को कहा वही झूठा मिर्जा गुलाम अहमद को कहना है। तो सिफर मां राशिदी की वजह से आपने मुसलमा को कहा, इसको आप नहीं कह रहे क्योंकि आप मिर्जाई मैं हैं। आपको कह रहा हूँ तौसीफ और रहमान राशिदी की मैं ये पूरा बयान सुनूंगा। वही पूरे बयान का क्या मतलब? उन्होंने कहा है ना गुलाम अहमद कादियानी झूठा, झूठा नबी। फिर सुनाऊं मैं? राशिदी ने बातें फिर की सुनाऊं? हैं, मैं उनके ब्रॉड पे जाके उनके फेस और टू यार फेस ब्रॉड को गोली मामले मारो रखूंगा। हमारे सामने। ये मुसलमा को भी उधर ही जाके कहना था कज़ाब। तो मुसलमा को कोई मानते हैं वो? मुसलमा को इधर यहाँ कहा है कौन ना, मुसलमा को मानने वाला? इस ब्रॉड पे कौन है मुसलमा को मानने तो वाला? आप लग रहे हो, आप हम- कह रहे हो उसको और कज़ाब हमारे सामने क्यों कहा है मुसलमा को कज़ाब? तो सिफरमान की वजह से। तो अब तो सिफरमान की वजह से मिर्जा को क्यों नहीं कहते झूठा? तो कहा था यार मैंने, मेरे तौसीफ और रहमान का पूरा गिल्ला बयान तित्तर है, सुनूंगा। गिल्ला तित्तर है, गिल्ला फिर जाके उनकी ब्रॉड पे उनके मुंह के ऊपर फेस टू फेस तित्तर है। सामने बैठ के कहूंगा जो भी कहना है। जो तुम्हारे साथ सलूक बंदे यहाँ करते हैं ना, तुम इसी के हकदार हो। जो बंदे तुम्हें कहते हैं ना, तुम इसी के हकदार हो, क्योंकि जो बंदा इस हद तक गिरा हुआ हो कि अपने असूल से भाग जाए। आपने खुद कहा कि भाई मैंने सैयद तौसीफ और मां राशिदी की वजह से मुसलमा को कज़ाब कहा।
अच्छा, अब बात सैयद सुने। तौसीफ रहमान राशिदी मिर्जा गुलाम अहमद को झूठा नबी कह रहे हैं, आप नहीं कहने को तैयार, क्योंकि आप बेसूल आदमी हैं, आपका कोई असूल नहीं है, साहबा आप गिले कराम तितर हो। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमीन को गालियां देने वाले ऊपर लानत हो, आप उनके जो उलमा पे जाके लानत भेजोगे उनके मुंह के ऊपर? जो साहबा कराम को गालियां दे रहे हैं। देखो कितना ड्रामेबाज है। एनो मुफ्ती साहब बैठाए चलो गिल्ला अमर तितर, भाई गिल्ला मुफ्ती तितर। साहब बैठाए चलो जिल्ला अस्सलाम वालेकुम तितर नहीं, मुफ्ती जब साहब आपके ऊपर बारी आती है तो आप आगे से हंसते हो। एक गिल्ला आपने तितर, यहाँ जो है ना पखंड बना रहे जो हो, लोग आपके साथ अपने ऊपर सलूक कोई कर रहे बात हैं, नहीं ले रहे, मुझे आगे इसी कर के रहे हो। हकदार हो आप शियों के खिलाफ नहीं बोल सकते, उनसे डरते हो। हाँ, भाई डॉक्टर, एक मैं- मिनट, आप सवाल कीजिए किस शिया ने साहबा को कहा, बताओ। भाई शिया का ये अकीदा है कि जब छोड़ें आप ये तो नमाज फजूल पढ़ आदमी, लो, ये गीला तितर। जब तक आप हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला देखो, अन्हुम को आपकी गाली ख्वाहिश नहीं के दोगे, मुताबिक- आपकी नमाज कबूल आपकी नहीं ख्वाहिश होगी। के मुताबिक मैंने आपको उनकी आवाज सुना दी है, फिर मैं सुना देता हूँ। एक साथी नीचे कह रहे हैं दोबारा सुना दे, लो भाई सुनना ना दोबारा। ना, आप सुनाए ना, मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, आप क्योंकि आप उनको गिले तितर हो, गिले तितर हो आप। गिले नहीं, आप आधे तीतर आधे बटेर हो। सुनना जरा अल्फाज। जो एक कमजोर तबका है उसको आप पीछे पड़े हुए हो, जो ताकतवर है उधर दांत आप एक बात तक नहीं करते। नहीं बचेंगे। बस अगर वो सजा जो इंसान के हाथ में नहीं मगर खुदा के हाथ में है, जैसे ताउन की बीमारी, हैजे की बीमारी आप पर मेरी जिंदगी में ही वारिद ना हुई तो मैं खुदा की तरफ से नहीं। अगर मौलवी सनाउल्लाह को हैजा या ताउन मिर्जा गुलाम अहमद की जिंदगी में ना हुआ, जो बीमारियां इंसानों के हाथ में नहीं अल्लाह के हाथ में है, तो कहना फिर याद कर लेना, यकीन कर लेना कि मैं झूठा हूंगा। ये जो मैंने दावा किया है किसी इल्हाम की बुनियाद पे नहीं किया, बल्कि महज खुदा से फैसला चाहा है। और मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे मालिक, तू बसीर और कदीर है, अलीम और खबीर है, मेरे दिल के हाल से वाकिफ है। अगर ये दावा मसीह होने का महज मेरे नफ्स का इफ्तरा है और मैं तेरी नजर में भी झूठा और फसादी हूँ और दिन रात इफ्तरा करना मेरा काम है, तो ऐ मेरे मालिक, मैं आजिज़ी से तेरी जानिब दुआ करता हूँ। दुआ सुनिए मिर्जा गुलाम अहमद की। अहले हदीसों को गालियां देने वालों, खत्म नबूवत पर उलमा अहले हदीस पे कीचड़ उछालने वालों, इस झूठे नबी का असल मुकाबला किया किसने? आप बताओ भाई, इस झूठे नबी का असल मुकाबला किया किसने? ये झूठा नबी है, ये कौन कह रहा है? ये वही कह रहा है जिसने मुसलमान को झूठा कहा है। अब आपकी मर्जी है, मुसलमान को कह दो, इसको ना कहो और सबके सामने गिला तितर बन के फिरते रहो, मर्जी है आपकी। नहीं, देखें, आप एक ही बात को रिपीट कर रहे हो बार 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 बार। मैं इसका जवाब दे भी चुका हूँ। कोई दूसरा नहीं है ना, सवाल ये है आप जो मैंने आपको बातें बताई हैं कुरान से, उनके ऊपर आपने एक बार भी इकरार नहीं किया या मुसलमान के बारे में कुरान याद नहीं आया? नहीं, जब मैंने कुरान की आयतें पढ़ी हैं कि इन पर लानत भेजो, तो भेजोगे आप? मुसलमान के मुफ्ती बारे साहब से में बात याद करें, नहीं? आप मुफ्ती साहब से बात करें, सारे बंदे कह रहे हैं इनकी मुफ्ती साहब से बात करें। भाई मैं मुफ्ती वैसे साहब भी- कौन है ये? मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मुफ्ती मुबश्शिर मेरा साहब टाइम बैठे खत्म हो रहा है, मैं मस्जिद में जा रहा हूँ। नहीं नहीं, गल सुन जो मुफ्ती साहब। अच्छा, ये जो है ये कादियानी है, ये जो बैठे हैं ये गीला तितर है, गीला तितर नहीं होता, गीला तितर। अच्छा, ये बड़ी कह रहे थे लानत मलामत के मुतल्लक, तो वो मैंने पूछना ये था कि मिर्जा कादियानी भी लानत किया करता था, उसने तो हर मुसलमान के ऊपर लानत की है, बल्कि लिख लिख के 1000 लानतें उसने उलमाए इस्लाम को दी हैं। तो मिर्जा कादियानी के मुतल्लक क्या फरमाएंगे? क्या उन्होंने सबको लानते दिए या चंद को दिए, या उनको दिए, या जो मौलवी हैं उनको दिए, या उलमा उनको दिए जो बच्चों से बदफेली करते हैं मस्जिद में? अगर उनको दिए तो फिर उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। सही है। अच्छा, फिर भाग जाते हैं सऊदीया में, पीछे पर्चा कटा हुआ बच्चे के साथ मस्जिद में बदफेली की है, और खुद साहब बैठे हुए हैं सऊदीया में। तो ऐसे के ऊपर तो मैं करोड़ बार लानत भेजता हूँ। नहीं, अभी तो आप कह रहे थे कि वो लानत मलामत करने वाला जन्मी है, कुत्ता है, खंदीर है, तो आप मिर्ज़ा कादियानी को कुत्ता खंदीर नहीं कहेंगे? रूहानी खदैन जिल्द 8 सफ़ा 157 और 58 और आगे तक 3 4 5 सफ़े हैं, ये जाता है 162 तक। मिर्ज़े ने लिख लिख के 1000 लानतें भेजी है। इसके बाद मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की और लानतें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जनाब सफ़ा रूहानी खदैन जिल्द 11 सफ़ा 360 है। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने
جناب 10 لاکھ لانتے بھیجی ہیں, 10 لاکھ. اب مرزا قادیانی کے بارے پھر ایک اور حوالہ دے دیتا ہوں. مکتوبات احمد ہے, جلد اول ہے, صفحہ 342 کے اوپر مرزا قادیانی نے لکھ کے 10 لانتے دینے کے بعد لکھا ہے تل کا عشرۃ کاملۃ. ابھی تو آپ, میں نیچے بیٹھ کے سن رہا تھا, میں نے بیچ میں آپ نے بولنے کا مجھے موقع ہی نہیں دیا, تو ابھی موقع ملا ہے. آپ تو بڑی مذمت بیان کر رہے تھے, لعنت نہ کرو, لعنت نہ کرو, نہیں وہ کتوں کا کام ہے, خنزیروں کا کام ہے, حرامیوں کا کام ہے, ذلیلوں کا کام ہے. تو اب مرزا قادیانی کے اوپر لگائے نا فتویٰ, کدھر گیا وہ فتویٰ؟ جی بولیے جناب. انہوں نے کدھر لانتے کی ہے؟ مجھے ان کا کتاب بتا دیجئے, ان کا صفحہ بتا دیجئے, تو میں جہاں انہوں نے لانتے کی ہے نا, تو میں ان سے پہلے بھی 4 صفحے پڑھوں گا, بعد میں بھی پڑھوں گا, پھر جو بھی نتیجہ ہوگا آپ کو بتا دوں گا. جی ابھی جب حوالے پیش کر رہا تھا تو کیا آپ رجولیت کی طاقت کا اظہار کروا رہے تھے مرزا قادیانی کی طرح؟ سنے نہیں ہیں؟ تو حوالے مجھے کیا پتا, آپ زبانی بتا رہے ہو, مجھے بتاؤ. جب تک آپ رجولیت کی طاقت کا اظہار کروانا نہیں نہ چھوڑیں گے, رولا پڑے رہنا ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. نہیں یار, ہے کم چھڑ دیو, پیڑا کم ہے, نہیں تو تمہیں بھی 10 مہینے دا عمل ٹھہر جانا ہے, پھر تساں مسیح موعود بن جانا ہے. نہیں ایسی نہیں بننا, ہو تو ہو سکنا نہ کدھر ٹھہریا ہوئے. نہیں مینوں کتنے, وہ تو مسیح موتر نو ٹھہرے ہے, 10 مہینے دا عمل ہے, مینوں کتنے. اچھا کبھی سنا ہے کسی قادیانی نے مجھے کہا ہو مسیح موعود؟ نہیں, میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں, پہلی بار آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ سے اب بات وہی نا, کبھی سنا ہے. اب دیکھیں نا وہ میں نے مجھے یاد آ گیا, کل آپ کو کہیں دیکھا تھا میں نے. کل آپ ایک بروڈ پہ گئے تھے, تو پھر وہاں سے آپ چلے گئے تھے, کیونکہ وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کے بارے میں کہ آپ نے ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہو. جو ہی آپ سے یہ بات کی, آپ فوراً وہاں سے تتر بتر ہو گئے. آپ یاد آ گیا. نہیں وہ نکال دیا تھا. وہ اصل میں بچہ عمران کل ہوا قادیانی مربی, اس کے ساتھ زیادتی کی. یہ بس وہ کیا کریں, وہ اس کو کہا بھی تھا کسی کو بتانا نا, اس نے لیک کر دی یہ بات, کیا کر سکتے ہیں اب. نہیں بھائی, بچہ تو کافر کا ہو, کسی وہ گناہ ہوا ہے مجھ سے, یہودی کا ہو, اس کی معافی اس مانگتا ہوں. کو بھی یہ جو بچوں کو دیکھ کے تھے, جانوروں کو, درندوں کو بھی ترس آ جاتا ہے. نہیں وہ غلطی ہو گئی. نہیں مفتی صاحب ان کے خلیفہ کہتے ہیں دل میں آپ نے معافی مانگ لی ہوگی نا, کہتا نہیں دل میں معافی مانگ لی ہوگی, ندا وہ کہتا. اچھا تو پھر یہ ایک حدیث بھی سنتے جائیں آپ نے, مجھے لگتا ہے جواب تے کو نہیں دینا. الادب المفرد کے اندر امام بخاری فرماتے ہیں, انہوں نے پورا باب بند ہے, باب اللعان, اور یہ باب نمبر ہے 146, اور الادب المفرد کی حدیث نمبر 316 ہے. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کثرت سے لعنت کرنے والے روزے قیامت نہ گواہی دے سکیں گے اور نہ شفاعت کرنے کے حقدار ہوں گے. یہ صرف ایک مذمت میں نے آپ کو یہ سنائی ہے, اور لعنت ملامت, مسلمانوں کے اوپر لعنت ملامت کرنے کی بڑی روایتیں ہیں. تو آپ تو بتائیے, مرزا قادیانی جو لعنتیں کرتا رہا, اس کے بارے میں آپ بتا ہی نہیں رہے. تو میں پوچھ رہا ہوں نا, کہاں لعنتیں کی ہیں؟ اگر انہوں نے جھوٹوں پر لعنت کی ہے تو میں بھی جھوٹوں پر لعنت کرتا ہوں. اگر انہوں نے ظالموں پر لعنت کی ہے, میں بھی ظالموں پر لعنت کرتا ہوں. انہوں نے مشرکوں پر لعنت کی ہے تو میں بھی ان پر لعنت کرتا ہوں. میں دوبارہ حوالے دینے لگا, تھوڑا سا رجولیت کی طاقت کا اظہار کروانا بند کریں ذرا, تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ہیلو جی بولیں. اچھا ہوں چھڈ دیتا جے کم, حوالہ دینے لگا, سنیے گا. روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 157 سے لے کر کے 162 تک مرزا قادیانی نے مولویوں کے نام لے کر, مولوی کرم دین, مولوی نظام الدین, مولوی الہی, یہ وہی مولوی تھے جو مرزا قادیانی کے ساتھ زیادتی کرتے تھے. یہ آپ کہہ رہے تھے نا, آپ نے کہا تھا کہ یہ بھی بچے باز مولوی تھے تو میں لعنت کرتا ہوں. تو یہ مرزا قادیانی کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی, تو مرزا نے پھر لکھ کے ان مولویوں کے نام ان کے اوپر لعنت ڈالی ہے.
मौलवी करमदीन, मौलवी निज़ामुद्दीन, मौलवी अल्लाही बख्श, मौलवी अभी हमीदुल्लाह खान, मौलवी नूरुद्दीन, मौलवी सैयद अली, मौलवी अब्दुल्ला बेग, मौलवी इसामुद्दीन बम्बई, मौलवी इसामुद्दीन, मौलवी निज़ामुद्दीन, मौलवी कादी सफदर अली, मौलवी अब्दुर्रहमान, मौलवी हसन अली वगैरह वगैरह वगैरह। और लंबी चौड़ी मौलवियाँ जो मिर्जे को भूल ही गया है किस किस मौलवी ने उसके साथ ज्यादती की है। अब उनको 1000 लानते लिख लिख के उनके ऊपर डाल रहा है। ये समझ लें कि पहला हवाला, दूसरा हवाला सुने, 10 लाख लानते डाली हैं। शैतानी खज़ाइन जिल्द 11 सफ़ा 330। ठीक है, 2 हवाले, तीजा हवाला चको फिर की याद करोगे। तीसरा हवाला है कि जनाब हजरत मिर्ज़ा गुलाम साहब जो हैं वो लानत डाल रहे हैं 10 लानतें। मकतूबे अहमदिया जिल्द अव्वल सफ़ा 342, 10 लानतें लिखने के बाद कहते हैं तिल का अशरतुन कामिलतुन। तो अभी मैं वो सुनने के लिए मैंने माइक जनाब ऑन किया है, सिर्फ कि आप जो कह रहे थे जी लानत करना वो कुत्तों का काम है, खंदीरों का काम है, दल्लों का काम है, वो किधर गए जी ਤੁਹਾਡੇ फतवे? अच्छा बात सुने, पहली बात है आप झूठ ना बोले, मैंने ये कभी नहीं वो सब रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपने कहा है एमिना। मैंने ये कभी भी नहीं कहा, कभी जिंदगी में मैंने नहीं, ये नहीं कहा। सुन तो लेना, मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं कहा कि लानत हो, लानत कुत्तों का काम है, सूरों का काम है, दल्लू का काम है। मिर्ज़े कादियानी की रजूलियत की ताकत का इजहार भूल सकते हो तो ये तुम्हारे लिए ये बातें कसम खा के कहता हूँ मैंने ये नहीं कहा। आप ये साबित करो तो जो सजा मोहम्मद ने तो कहा है ना, देना, वो तो कहता है इस्लामी कुर्बानी के सफ़ा 12 के ऊपर वो कहता है कि मिर्ज़े कादियानी ने जो है ना गलत काम करवाया था, बच्चेबाजी करवाई थी उसने, वो वहाँ लिखा हुआ है। नहीं ये आप झूठ बोला, आपने 2 बार झूठ बोला। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਮਰਦਈਆਂ ਨੂੰ, भुल्लन की बीमारी आपके ऊपर बात आती है, माइक म्यूट कर देते हो, यही आपका मसला है। या यार मैं नहीं करता, मैं या माइक म्यूट कर देते हो, जब आपके पास बिल्कुल जवाब ना हो तो फिर ठा करके नीचे गिरा देते हो। आपके ये 3 काम है। नहीं वो फतवे किधर गए? आप कह रहे थे लानत करना, कहा ये बात जो अभी आपने 2 बार रिपीट की है। पहली बार में खामोश हो गया, दूसरी बार आपने कहा, फिर मैं बोला कि मैंने बात नहीं की। आप काफिर ने कहा, आप कह रहे हो मैंने कहा लानत करना कुत्तू का काम है, सूरू का काम है, दल्लू का काम है। मैंने तो ये कही नहीं है, ये बात तो मैंने कही नहीं है। चलो पहले नहीं कहा तो आप कह दें, कोई मसला नहीं। आपने 2 बार मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, ये बात मैंने कही नहीं है। यार बात सुने ना, मतलब ये पहले नहीं कहा, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं ना, इसी तरह आपके बाकी इल्जाम भी झूठे हैं। जिस तरह आपने अभी मेरे सामने यार ये इल्जाम है, मैं किताब का हवाला दे रहा हूं, आप कह रहे हैं इल्जाम है। आपने कहा कि मैंने कहा कुत्तू का काम है लानत करना, सूरों का काम है लानत करना, दल्लू का काम है। आहो मिर्जा कादियानी ने ये कहा है, किस काफिर ने ये कहा है? आपने कहा है, मैं कह तो रहा हूँ, आपने कहा, आप काफिर ने कहा। मैं कलमा ਤੁਹਾਡੇ कलमे दी क्या ही बात है, कलमे है। जब आपके गले से कोई पकड़ ले, आप माइक म्यूट कर देते हो, आप उसको नीचे गिरा देते हो, आप अपना माइक लगा लेते हो ताकि इसकी आवाज दब जाए। चलो नवी सुन लो जी, चलो जी तुसी दबाओ ना आवाज ते उच्ची सारी आवाज कहो मिर्जे ते लानत बेशुमार। चलो कह दे। देखा बात कौन सी हो रही है, जब आपके खिलाफ बात जाए आप फौरन पेंतरा बदल देते हो। साडे खिलाफ केड़ी कही ये गल दसो ते सही दा। बोला मैंने ये बातें कही नहीं है। आप मेरे से बात कर रहे हो, आपने एक ही बात 2 बार मेरे पे झूठ बोला कि मैंने ये बात कही है। ये किस काफिर ने कही है कि दल्लू का काम है, सूरू का काम है, कुत्तू का काम है? आप काफिर ने कही है। नहीं देखा दूसरे का काफिर। मैं तो ये समझ रहा था आप मिर्जा कादियानी को कह रहे हैं कुत्ता, आपने मुझे काफिर कह दिया। हदीस की रोशनी में आप खुद काफिर हो गए और मैं कलमा गो मुसलमान हूँ। अच्छा सही है। अच्छा चलो ये तो हो गया ना, मैं तो हो गया ना काफिर। तो इसका जवाब कौन देगा? झूठे इल्जाम लगाना, दूसरों की टांगे खींचना। ओ चल यार मैं तो काफिर हो गया आपके बकौल, लेकिन ये मिर्जा कादियानी जो लानत मलामत करता था इसका क्या कर? आप हो डॉलर, आप खरीदे हुए हो, पेड लोग हो आप। अच्छा दूसरों के ऊपर झूठ बांधते हो। आपने 3 दफा मेरे ऊपर झूठ बांधा। तो ये जो आपने जितनी बातें बताई है मुझे क्या पता ये सच है? ये भी तो एक मिनट थोड़ी देर रुकना, जरा 1 मिनट रुकना। अभी आपने मुझे काफिर कहा। यार सुनते सही यार, 1 मिनट सुन यार, थोड़ी तो सुन लेना, तेरी गल सुनी है ना यार,
सबर ना सुन लेता तो केड़ा तुम गाना करने। अच्छा देखो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारे ऊपर मैंने झूठ बांधा है, तो तुम देखो कितने चीखे मार रहे हो और उछल कूद कर रहे हो। तो उस मिर्जा कादियानी कज़ाब और दज्जाल का क्या करना है कि जिसने अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर झूठ बांधे हैं। आजिज ने पूरी किताब लिखी है, पूरी किताब लिखी है मिर्जा कादियानी के 200 झूठ। और मिर्जा कादियानी ने हदीसें, ये देखो उसकी 2-3 हदीसें मैं सुनाता हूँ, सुनो जरा। रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 209 के ऊपर वो कहता है, अहादीसे सहीहा से भी साबित होता है कि मसीह मौत 6,000 में पैदा होगा। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरी तरफ झूठ की निस्बत की उसको चाहिए अपना ठिकाना जन्नत में बना ले। ये सिर्फ एक हदीस मैंने पेश की है, 200 हदीसें मैं पेश कर सकता हूँ मिर्जे की बयान करदा, जो मिर्जे ने बयान किया। हालांकि दुनिया की किसी किताब में वो हदीस नहीं लिखी। हम मिर्जे की बयान करदा इन हदीसों के ऊपर मुंह मांगे इनाम का ऐलान करते हैं। अगर साबित कर दो तो ठीक, ना साबित करो तो फिर मिर्जा कादियानी बकौल नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मी है, कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, फराडिया है। तो ये बात चली थी कि आप कह रहे हैं जी मेरे ऊपर तुमने झूठ बांधा है, तो तुम इतने सीख पाओ रहे हो। तो उस मिर्जा कादियानी ने जिसने अल्लाह नबी के ऊपर झूठ बांधा है, तो आपको मैं एक बात बताता हूँ कि एक बंदे ने एक किताब में लिखा कि गधे का गोश्त खाना हलाल है। उसकी किताब में लिखा हुआ था। मुखालफों ने कहा ये देखो जी, इस बंदे ने किताब लिखी है कि गधे का गोश्त खाना हलाल है। जब किताब के अंदर देखा तो वाकई लिखा हुआ था गधे का गोश्त हलाल है। जब जो जुमला लिखा हुआ था गधे का गोश्त खाना हलाल है, जब इससे थोड़ा ऊपर गए और थोड़ा नीचे पड़ा तब मतलब सामने आया कि उनके शहर में एक कसाई था, वो गधे का गोश्त बेच रहा था। वो पकड़ा गया। जब पुलिस वालों ने पकड़ा तो तू क्यों बेच रहा है, उसने कहा फलां मौलवी ने कहा। जब उस मौलवी के पास गए तो उसने कहा जी मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। तो उस मौलवी ने सिर्फ ये वाकया लिखा हुआ था कि उस कसाई ने ये कहा कि गधे का गोश्त खाना हलाल है, उसने फलां मौलवी ने सुना, जुमला तो आ गया। तो ये जो आपने हवाले दिए मैं पूरी किताब पढ़ूंगा, इससे पहले 4 सफ़े पढ़ूंगा, इससे बाद पढ़ूंगा, फिर नतीजा निकालूंगा, फिर निचोड़ करूंगा, जो भी होगा आपको बताऊंगा और उनके मुंह के जापे बोलूंगा। मैं पीठ भी बहुत बड़े झूठे हैं। आपने पहले आपने ये वाकया सुना के कुत्ते का जिक्र किया था और ये किया था कि ये मेरे साथ वाकया हुआ था, मैंने जाके मौलवी को पूछा था, मैंने ये बात की थी। बहुत बड़े झूठे हैं। पहले कुत्ते का जिक्र किया था, नहीं मैंने एक मिसाल दी है आपको। पहले आपने कहा था ये वाकया मेरे साथ हुआ है। एक काम कर लेते हैं, ये जो एक हवाला पेश किया है मिर्जे का झूठ, यार एक मिनट सुने, रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 209 का, ठीक है जी, रुके जरा ये ले अभी कर लेते हैं ये गो और ये मैदान। ये जिल्द 22 आ गई है, ये सफ़ा नंबर है 209। अभी इसके 4 सफ़े आगे से और पीछे से बात करते हैं। क्या आप रेडी हैं? करेंगे? चलें मैं बात सुने करूंगा, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ मस्जिद, 9:30 मगरिब की नमाज होगी, तो नमाज जरूरी है। ना करो, नहीं भाई, नमाज जरूरी है। देखो ना, चंगी गल नहीं, आपने कहा 4 सफ़े आगे से पढ़ूंगा और 4 पीछे से पढ़ूंगा। देखे ये इस किताब को भी लिखे राउंड अबाउट 10 साल हो गए हैं, आज तक किसी एक चीज का, एक हवाले का जवाब नहीं आया। क्या आपने इन 10 सालों के अंदर 4 सफ़े ही नहीं अभी तक पढ़े? किसी एक मुरब्बी ने बताइए, इसी किताब के मुतल्लक आपका मिशनरी मुरब्बी अंसर रजा, उसके साथ बात हुई है, उसके पास जवाब नहीं था। किसका मुरब्बी बताएं भाई? तो मेरा मुरब्बी किधर भाई? ये 300, ये कितना सफ़ा 209 मैं खोल लेता हूँ, अभी खोल लेता हूँ। तो अब अगर आप रेडी हो तो चलो अभी ये और ये मैदान दूर क्या जाना है, आप पढ़ेंगे, पता नहीं आपको वक्त मिले या ना मिले। तो ये ले, ये है जी सफ़ा नंबर, ये हवाला भी हाईलाइट भी किया हुआ है। आप कहते हैं अभी तो पीछे से जितने सफ़े कहते हैं मुझे सफ़ा बता दें, वहां से पढ़ना शुरू कर देते हैं। चलें
हामी भरे हैं 3-4 जरा। सफे बंदा पीछे पड़े और 3-4 सफे बता जो दें आप मुझे बता रहे हो। ये सफा नंबर 209 सुने है, ना। कहाँ से पीछे से ये पढ़ना है बताएं। अच्छा बात सुने ना, मैं अभी आपको जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, ठीक है। अच्छा। तो अभी मैंने वुजू किया, 9:30 बजे इधर जमात होगी, खड़ी होगी, तो मुझे नमाज पढ़ने के कौन सी नमाज पढ़नी है आपने, कौन सा मगरिब वक्त की। हुआ? मगरिब की। मगरिब मगरिब। अच्छा अच्छा, तो सामने कोई किसी वो असल में मिर्जे कादियानी ने जो बताया नमाज का तरीका तुम लोगों को, वो तो ये है कि भाई सामने ना एक लड़की एक लड़के के साथ सेक्स कर रही है और लड़के का वो जब दुखोल करेगा तो इंटरकोर्स करेगा तो वो अंदर वो जो मजा आता है ना लड़के को और लड़की को, ऐसा मजा तुमको आना चाहिए नमाज के अंदर। तो वो अच्छा। ऐसा मजा लेते हैं, कभी आपने लिया कोई? अच्छा देखिए मुफ्ती साहब, आपने सुन्नत रखी हुई, कुरान की बात कर रहे हो, नबी बिल्कुल। पाक की बात कर रहे हो, और साथ देखो बात क्या कर रहे हो। नहीं नहीं ये मैं आपने बात नहीं, की है। ओहो मैं नहीं कर रहा, लाख दी पहले लानत आपने क्यों मेरे कहते ऊपर हैं? 3 बार झूठ ओ, की मैं झूठ नहीं पे कर बांधा। रहा ये फिर आपने मुझे रूहानी कहा कि मैं काफिर हूँ, यार, आप मुझे ओ भाई, काफिर साबित और कर दें। रूहानी खदैन जिल्द 21 सफा 192 भाई, आप कादियानियों मुझे- की नमाज का खशू खुदू और आप जो मुझे बात काफिर कह रहे हो वो साबित पढ़ कर लें। दें। ये लो आप ये लो, मुझे जिल्द काफिर 21 साबित कर ये दें, ले, अपने जिल्द- उलमा जिल्द अपने 21 आपके उलमा मुझे काफिर ओए साबित लो कर यार, ओ दें, भाई, मैं अपने आपको को मुंह गल मांगा का- इनाम दूंगा। बात अपने सुने को मेरी, नहीं कीती, बात अपने सुने को मेरी, नहीं आपने मुझे काफिर कहा, अपने को नहीं आपके की, जो तुसा मसलक क्या के ना, मैं उलमा नमाज हैं, पढ़न चला बात वहां। सुने ना, जब आपको पता है गला पकड़ा जाएगा, आप बात नहीं सुनते। आपके मसलक के उलमा अगर मुझे काफिर साबित कर दे, मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। अगर उन्होंने मुझे मुसलमान कहा, काफिर साबित ना कर सके, तो बदले में मैं आपकी जबान काट दूंगा। ये देख ले, ये बोलो। हाईलाइट बातें नहीं बोलो, मंजूर है। आप कह रहे थे ना मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं हाँ, ये जा कह रहा रहा था, हूँ। ये आप खशू खुदू इस किस्म का करती हैं कि नहीं, कोई आपको लज्जत लेते हैं कि नहीं? नहीं देखिए, आप बेहुदा बातें कर रहे हैं। आप ये वो बेहुदा मुफ्ती का मैं काम नहीं कर रहा, मिर्जा कादियानी कर रहे हैं। लानत पानी जे मिर्जे ते पाओ, और जो कहना मिर्जे को कहो, मुझे क्यों कह रहे हो? मैं तो नाकिल हूँ, मैं तो नकल कर रहा हूँ, एक पेश कर रहा हूँ हवाला। लानत पाओ, इधर पा दियो लानत, अल्लाह कदी लानत ही पाओ, नहीं। पाओ लानत। लानत उन पर हो जो लोडेबाजी करते हैं, जो बच्चों के साथ बच्चे निकाल के सऊदीया भाग यानी जाते हैं। वो जो मिरकातु यकीन के अंदर हकीम नूरुद्दीन लोंडेबाजी का जिक्र है कि हकीम नूरुद्दीन लोंडेबाजी किया, उसके ऊपर लानत डाल रहे। नहीं, हर उस मौलवी पर लानत, हर उस मुफ्ती पर लानत जो बच्चों के साथ लोडेबाजी मुफ्ती, करे, अच्छा, फिर मुफ्ती सऊदीया सादक भाग के ऊपर जाए। लानत डाल रहे हैं। ठीक ठीक, जी, मुफ्ती सादक हर उस मुफ्ती पर लानत, हर उस मौलवी पर लानत, हर उस बंदे पर लानत जो बच्चों के साथ बदफेली करे, फिर बदफेली सऊदीया में करे। चूहे की तरह जाकर कादी चुप कर यार जाए। मते पा रहे हो कि ਜਿਹੜਾ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद ਤੁਹਾਡਾ 2 ਨੰਬਰ ज्यादती करता सी। मुफ्ती साहब, मेरा क्या तलक, मैं अहमदी नहीं हूँ, शायद आपको नहीं मुझे पता। पता है आप नहीं है, मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ। हाँ, जब मैं ना अहमदी लेके नहीं हूँ। पाओ ना लानत है। लो, अहमदियों के पाओ ना। बारे में सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप लोग उनके साथ जुल्म करते हो, उनके हक मारते हो। वो बस जुल्म मैं तो हो आपको गया, ये चलो बात ठीक बता है रहा हूँ। जी, वो तो बढ़ गया जुल्म। इधर भी तो कुछ करो, आप नमाज पढ़ने जा रहे हो, जी, जो ये बंदा कहता है कि नमाज ऐसे पढ़नी है कि जैसे तुमने ऐसे अल्लाह अकबर जब हाथ बांध लिए हैं, इधर बंदो भावे थे पन्नो भावे हाथ छड़ दियो बाहर, तो तुमने बस ऐसे गोरो खोज करना है कि और आप जैसे सामने एक और कुड़ी उनके ते बारे एक में क्या मुंडा, कहोगे जो मस्जिद में इत्काफ की हालत में बच्चे के साथ बदफेली करते हैं? वो ये लिखा आप हो ऐसे भाई, पढ़ते हो, इसमें लिखा है। आप ऐसे करते हो मस्जिद में, और मेरे सिरे दा चढ़ो इधर आप ऐसे करते हो, उनके बारे में नहीं बता रहे। भाई हमारे आप नजदीक तो ही के हराम है मतलब ये के लोग, और आप ये ही के हराम बेटी है, भाई और ये हराम है, हमारे नजदीक हराम है। इत्काफ की हालत में गलत काम है, कम ही गलत है 4 जी, वो साल कम के ही बच्चे गलत के साथ बदफेली करते हो, फिर और फिर सऊदीया भाग आगे जाते से हो। मिर्जे कादियानी ने पता क्या, नहीं, सऊदीया रहम और भाग जाते हो, औरत की रहम आज छुप जाते हो, रहमदानी को, पीछे आप रहम और रहमान, रहम और रहमान को एक का है। अच्छा बात वो सुने, कहता है मुफ्ती साहब, जैसे रहम मैं के जा रहा साथ हूँ ताल्लुक मस्जिद, होता है। आप मेरी लगता है नमाज अदा कराएंगे। अच्छा, तो मैं मेरी बात आपकी सुने, बड़ी आप- राय है तो वापस आके आपसे बात होगी आप इंशाल्लाह। जिस मस्जिद जा रहे हैं उस मस्जिद का नाम बताएं, यहाँ पे कौन सा मगरिब की अजान हुई है? मैं भी उधर ही बैठा हूँ। कौन सी मस्जिद इधर मगरिब की अजान हुई है? मगरब की अजान होने वाली है ना, मस्जिद का नाम क्या है भाई जिधर नमाज पढ़ने जा रहे हो? मदनी मस्जिद, मदनी मस्जिद, मदनी मस्जिद। जिब्बट स्ट्रीट, मदनी मस्जिद किधर? जिब्बट स्ट्रीट, GIBBET, जिब्बट स्ट्रीट।
ਜੀ ਬਸ ਸਟਰੀਟ ਉਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 220 ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਇਹ 220 ਮੁਲਕ ਜੇ यानी कि पूरी दुनिया के अंदर टोटल मुल्क 195 है और कादियानी कहते हैं 220 मुल्कों में पहुंच चुके हैं। ये दुनिया के 220 के मुल्क के अंदर रहते हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਲੈ ਕੇ ਦਾੜੀ ਸੁਨਨਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਤ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਡ ਕਰਕੇ ਬਤਾ ਰਹੇ, अपने पास से किधर लिखी है? जो अपने पास से लिखी है, ये अपने पास से, ये हमारी ये किताब ये है। मुझे नहीं पता ये अपने पास से लिखी हुई है, किधर से है? आप 3 बार झूठ बोल चुके हो, मैं कैसे मानूं? ये आपने उधर से इंटरनेट से फोटो लेके इधर लगा दो और उल्ट पुल्ट पढ़ो तो मैं मान जाऊंगा आपकी बात, क्योंकि आपने 3-4 बार वक्त आ गया इन कादियानियों के ऊपर। वक्त आने पे अपनी किताबें, मिर्जे की किताबों का भी इनकार थे। पा दियो लानत, फिर मिर्जे दे पा दियो कि जिसने ये तहरीरें, लानत है इसके ऊपर। अच्छा आप इधर ही रहना, वापस आके बात करता हूँ। और पाओ लानत, पाओ लानत। चलो नेक्स्ट टाइम इनको इंटरनेट से डाउनलोड करके दिखा देते। हेलो वो दौड़ ही गया। औकात इतनी थी, कोडी औकात नहीं। नमाज का खुशू खदू, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, नकले कुफर नाबाशद। मैं आखिर की 3 लाइनें सुनाता हूँ, सुने जरा। ऊपर पूरा सफ़ा आपने पढ़ना है, इस पूरे सफ़े को पढ़ना है, लेकिन मैं आखिर की 2-3 लाइनें सुनाने लगा। कहते हैं पास से याद इलाही में ज़ोक शौक, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हालत खुशू कहते हैं, नुतफ़ा की उस हालत से मुशाबे है जब वो एक सूरत इंजाल पकड़कर इंदामे नहानी के अंदर गिर जाता है। कहता है नमाज के अंदर तुम्हें ऐसी लज्जत आनी चाहिए, ऐसा खुशू व खुदू होना चाहिए, ऐसी लुत्फ़ आना चाहिए कि जब वो मर्द औरत के इंटरकोर्स करता है, उसकी मादा मनविया निकलती है, उसको एक लुत्फ़ आता है, मज़ा आता है, तो उस तरीके से तुम्हें भी लज्जत आनी चाहिए नमाज के अंदर। बताइए, ये है कादियानियत, ये है कादियानी मज़हब। ये नमाजें पढ़ते हैं ये लोग, नमाजें पढ़ते हैं, बड़ी नमाजें पढ़ते हैं जी। हाँ जी, बंदे टुर गए तो उनके नाल गल करेंगे। अच्छा मुझे इजाजत दें फिर यार, बंदा तितर बितर हो गया है, जिससे बात करनी थी। नमाज पढ़ने गए हैं, नमाज कभी मिर्दे कादियानी ने कोनी थी पढ़ी थे, तुसीं नमाज पढ़न गए हैं। सोहेल नासर साहब आ रहे हैं नीचे से, बहुत बड़े मुरब्बी हैं मोहम्मद सोहेल नासर साहब। आ जाए ऊपर, कोई सवाल है तो कर लें, मौका अच्छा है। सोहेल नासर साहब हिम्मत करो, 2 मिनट की बात है, कोई नहीं, कोई सवाल है तो कर लें अगर आपका कोई है तो। जी अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद साहब क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम। उस्ताद साहब बड़े मुफ्ती साहब किसी हदीस के बारे में पूछ सकते हैं या कोई खास मौजू चल रहा है? के अवाम यार अफसल एक मिनट ठहरी जी, सियाल साहब क्या फरमा रहे हैं? जी मैंने कहा कोई यानी कि कोई खास मौजू चल रहा है या कोई भी हदीस के बारे में, किसी भी हदीस के बारे में पूछ सकते? नहीं जी, सिर्फ कादियानियत और मर्दियत के मतलब हमसे सवाल करें, मिर्जा सीनियर मिर्जा जूनियर जेल में, तो अगर हमें पता होगा तो हम जवाब दे देंगे, ना पता होगा तो चुप रहेंगे। और दीगर मौजूआत का मेरे इल्म में नहीं। वो कादियानी एक हदीस पेश करते हैं कि जो है मिसाल इमाम महदी 1290 में पैदा होगा, वो हवाला देते हैं दूसरा नजम साकिब का। तो ये यानी कि इसके बारे में थोड़ी सी नजम साकिब किसकी किताब है? यही तो मैंने पूछना था भाई, ये किसकी किताब है? कोई हदीस की किताब नहीं है।
हदीस की किताब नहीं है मेरे भाई। दूसरा मुफ्ती साहब, अभी जो आपने पहले एक हवाला दिया था हकीकतुल वही 209 सफ़ा है उसका, कौन पुरानी सी, खजान। किस चीज अभी का आप हवाला था? अभी आप एक बता रहे थे कि ये हवाला के हदीस ये कहीं पे मौजूद नहीं है। हाँ वो ये वो 200 झूठ के आप ये नेट के ऊपर भी मौजूद है, वो सारे हवाले दिए हुए हैं, ये सब हदीसें ही हैं। यानी 200 झूठ से मुराद 200 हदीसें मिर्जे ने जो पेश की हैं, और दीगर झूठों को तो हमने लिया ही नहीं। वो तो एक इतनी मोटी किताब बननी थी, ये सिर्फ मिर्जे की बयान करता हदीसें, ये वो हैं। तो ये था रूहानी खजान जिल्द 22 सफ़ा 209। 209 एक और चलो नहीं, अगली एक ये वाला जो है ये ज़मीमा हकीकतुल वही है किताब का नाम। हकीकतुल वही। अच्छा ठीक। मिर्जा कादियानी हदीस बयान करता है, बाज अहादीस में भी आ चुका है कि आने वाले मसीह की एक ये भी अलामत है कि वो जुल्कर नैन होगा। रूहानी खजान जिल्द 21 सफ़ा 118। हदीस को कादियानी साबित कर दे, मुंह मांगा इनाम ले ले, जितना ब्लैंक चेक उसके आगे रख दिया जाएगा, जितना मर्जी फिल कर ले। लेकिन अगर साबित ना कर पाए तो कम अज कम एक मरतबा तो लानत बनती है कि तुम डालो मिर्जे कादियानी के ऊपर लानत। एक लानत, 1000 नहीं, कोई लाख 10 लाख 50 लाख नहीं, एक लानत मिर्जे के ऊपर डाल। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है। कोई चैलेंज कबूल करता है कोई कादियानी, आओ भाई कादियानी हो, आओ भाई नेड़े लगो। ये आए तो हैं एक अहमद साहब जी जनाब, अपने भाई हैं ये। जी अफसल आप कुछ पूछ रहे थे, अब बोलिए। अहमद साहब आप शायद मैच देख रहे हैं, आपकी तरफ से शोर है, तो अगर आपने कोई बात नहीं करनी तो प्लीज़ म्यूट कर लें, फिर आप इंटरप्शन हो रही है। शुक्रिया। मुफ्ती साहब, तोहफ़ा गुरड़िया के अंदर मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि मैं वही रुद्र गोपाल हूँ जिसके बारे में ईसाई, हिंदू और मुसलमान जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये इस तरह के लग़वियात का क्या फ़ायदा था? ना तो कोई मुसलमान किसी रुद्र गोपाल का इंतज़ार कर रहे हैं, ना ही किसी के मंशा है, तो ना ही आज तक किसी ईसाई ने यह दावा किया कि हम किसी रुद्र गोपाल का इंतज़ार कर रहे मिर्जा हैं। कादियानी का कोई एक यूसुफी दावा नहीं। मिर्जे कादियानी के दावाजात आज तक कादियानी भी जमा नहीं कर सके कि उसके दावाजात हैं कौन से। और सच्ची बात ये है, सच्ची बात ये है कि शायद ये 150 साल कमोबेश हो गए हैं, इन 150 सालों में हमारे किसी आलम ने भी आज तक इकट्ठे नहीं किए, क्योंकि दावाजात इतने हैं, वो कौन अब वेला होके लगा रहे। मिर्जा कादियानी खालिक और मखलूकात हर चीज का दावा किए। खालिक का भी दावा, अल्लाह मैं हूँ, अल्लाह का बेटा मैं हूँ, अल्लाह की बीवी मैं हूँ। नीचे आता है कायनात और माफिहा की हर चीज का वो दावा करता है, ये मैं, ये भी मैं। ये कंप्यूटर अगर उसके दौर के अंदर होता तो वो कहता है कंप्यूटर भी मैं ही। मोबाइल होता कहता है मोबाइल भी मैं ही हूँ। इंटरनेट होता है कहता है मैं इंटरनेट भी मैं ही हूँ। वो ऐसा था। उसके दावाजात की तादाद आज तक सामने नहीं आ सकी। उसके दावाजात कितने, कहाँ से शुरू होता है वो जब तकब्बुर और तफाखुर के ऊपर आता है तो चढ़ जाता है समानों के ऊपर और खुदा बन बैठता है, खुदा का बेटा बन बैठता है। ठीक है। और जब वो आजजी और इनके सारी और जमीन के ऊपर गिरता है तो वो जनाब किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। वो इंसान का लाम नून तक बन जाता है, वो गंडोया बन जाता है। वो कहता है मैं बंदे का पुत्र ही नहीं, ना आदमजाद हूँ, मैं बंदे का बच्चा नहीं। तो मिर्जा तो ये था, उसके दावाजात की क्या बात है। कायनात और माफिया की हर चीज का उसने दावा किया हुआ है। जी जी बात आगे बढ़ाएं। मिर्जा कादियानी कहता है कि यालाश, और ये उसके पैरोकार कहते हैं कि इसका मतलब है ला
ला शरीक या ला शरीक। या ला शरीक, तो क्या ऐसी कोई इस्लाहत पहले की कुरान पाक या हदीस में मौजूद है? बिल्कुल नहीं जी। यलाश के असल में यलाश कौन था, ये उठा के देखिए तारीख इब्ने खुल्दून। तारीख इब्ने खुल्दून के अंदर यलाश के बारे में है कि वो मजूसियों का खुदा था। तारीख इब्ने खुल्दून के अंदर उसका जिक्र मौजूद है। मैं हवाले दे देता हूँ। तारीख इब्ने खुल्दून अल जुज़्उ सानी दूसरी जिल्द, दारुल फिक्र बैरूत मतबूआ, सफ़ा 199 199 आप पढ़ सकते हैं। फिर सफ़ा 258 यानी 258 के ऊपर भी जिक्र मौजूद है। फिर आप पढ़ सकते हैं उसकी फहरिस्त के अंदर, जो फहरिस्त वाली जिल्द है और उसके सफ़ा नंबर 653 में आपको वो मिल जाएगा ये लाश के मतलब, ठीक है। फिर आप इसको आप पढ़ सकते हैं जनाब। हम आ जाते हैं फहारस तारीख इब्नुल खुल्दून। अच्छा, इसके सफ़ा नंबर 545 के ऊपर भी जिक्र है यलाश बिन किसरा और यलाश बिन नैरून, दो यलाश थे। अब मिर्ज़ा कादियानी का बयान करता यलाश जरा सुनिए। मिर्ज़ा कादियानी कहता है, रूहानी खजाइन है और जिल्द 17 है, सफ़ा 203 है। वो क्या कहता है? कहता है इसी मजमून के लिखने के वक़्त खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि यलाश खुदा का ही नाम है। ये एक नया इल्हामी लफ्ज़ है कि अब तक मैंने इसको इसी सूरत पर कुरान और हदीस में नहीं पाया और ना किसी लुगत की किताब में देखा। इसके माना मेरे पर ये खोले गए कि या ला शरीक। ठीक है जी। अब सुनिए मिर्जे ने गप्पें कितनी मारी हैं। पहली बात ये है कि ये मिर्जे पर नया इल्हामी कोई लफ्ज़ नहीं है, ये लफ्ज़ पहले का मौजूद था और उसका हवाला मैंने आपको दे दिया। यलाश बिन नैरून, यलाश बिन किसरा मजूसियों के दो खुदा थे जिनकी वो परस्तश करते थे। अच्छा, ये हो गया। फिर मिर्ज़ा कादियानी ये कहता है कि यलाश का मतलब होता है या ला शरीक। अरबी कायदे के मुताबिक ग्रामेटिकली ये गलत है, क्योंकि अरबी कायदे के मुताबिक जो भी अरबी से वाकफियत रखते हैं या ग्रामर से वाकफियत रखते हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे, और जाहिलों को कोई खबर नहीं है। इज्तिमाए हरफैन सकीलैन, ये कायदा कुली है कि दो हरफ एक जगह पे जब जमा होते हैं तो उसमें सिकल आ जाता है, कलाम सकील हो जाता है। ये कायदा कुली है अरबी का। यहाँ पे या हरफे निदा और ला हरफे नफी, दो हरफ जमा हो गए हैं और ये अरबी कायदे के मुताबिक ही गलत है। अरबी कायदा कुलिया के मुताबिक ही गलत। ठीक है जी। जी आसिफ रजा साहब आए हैं। आसिफ रजा साहब माइक ओपन करें अगर कोई क्वेश्चन है आपका। दूसरा है काला और कालू। काला और कालू, ये मेरे पास किताब रखी है जिक्र खबीस। ठीक है जी, इसके अंदर उसका जिक्र मौजूद है सफ़ा 230 के ऊपर, काला और कालू। और कहते हैं ये अरबी अल्फाज हैं, इसके माना है निगाह रखने वाला। ये खुदा ताला का नाम है। दुनिया की किसी लुगत में काले और कालू का तर्जुमा ये दिखा दो, निगाह रखने वाला, मुंह मांगा इनाम ले लो। और ये अरबी लफ्ज़ नहीं है। काला और कालू अरबी लफ्ज़ नहीं है, ये पंजाबी लफ्ज़ है। अच्छा जी, तो दो खुदा तो ये हो गए कि यलाश और काला और कालू, तीन हो गए टोटल। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि मेरे खुदा का नाम आज है, आज रब्बुना आज। रूहानी खज़ाइन जिल्द 1 सफ़ा 662। वो कहता है मेरा खुदा आज है, मेरा रब आज ही है।
اس کا حوالہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 263 کہ ہمارا رب آج ہی ہے، اس کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے۔ پھر یہ 4 ہو گئے۔ 5واں قادیانیوں کا خدا ہے حضرت وتر۔ یہ آپ دیکھ لیں تذکرہ کا صفحہ نمبر 155 ہے، غالباً 155 ہے، ایک منٹ، 151 سوری 151۔ تو جے تو من حضرات الوتری، میں جناب باری تعالیٰ سے آیا ہوں، یعنی حضرت وطر کا نام رکھ دیا جناب باری تعالیٰ۔ تو بہرحال یہ وطر، آج، کالا، کالو، جلاش، 5 خدا ہیں قادیانیوں کے، اور یہ شریعت اسلامیہ میں اس کا دور دور تک کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں، ٹھیک ہے جی، کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ جی آصف رضا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ مفتی صاحب، ان کی کتاب کہیں آپ ننگی خزائن اور ننگا تذکرہ، اس طرح کہا کریں۔ شکریہ جی، بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی ہے جناب، جواب فرمایا آپ۔ مرزا قادیانی کہتا ہے بڑی بڑی چھوڑو تھا، اتنا بڑا چھوڑو پکڑی نہیں جاتی مرزے کی، آج تک نہیں پکڑی گئی، بڑی بڑی چھوڑو۔ سنو جی، شیطانی خزائن جلد 20 صفحہ 409 کے اوپر کہتا ہے میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ 24 گھنٹے ہمارے لڑکے براڈیں کرتے ہیں، کبھی کوئی قادیانی ایسا دیکھا ہے جس نے آگے دلائل کے ذریعے منہ بند کر دیا ہو؟ کبھی 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 دیکھا ہو؟ حتیٰ کہ خود مرزا قادیانی کی کرتوت یہ تھی، اس نے جاہل مطلق انسان تھا، اس نے جناب دیکھا کہ پاک و ہند بھارت تھا، جب یہ سارا پاک و ہند، اس میں آریہ لوگ اسلام کے خلاف بکواسیات کر رہے ہیں، یا کچھ عیسائی ہیں وہ کر رہے ہیں اسلام کے اوپر اعتراضات، تو اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا۔ حالانکہ بڑے علماء کرام لگے ہوئے تھے، ان کے اعتراضات کے جوابات دے رہے تھے، یہ بیچ میں لگ ہی اٹھا، کہنے لگا میں نا ایک ایسی کتاب لکھوں گا اسلام کی حمایت کے اندر کہ اس میں اتنے دلائل ہوں گے، عقلی، نقلی، قرآن، یہ دلائل، وہ دلائل، 50 اس کی جلدیں ہوں گی۔ تو اصل میں غریب آدمی ہوں، تے انج کرو کہ پیسہ جمع کرا دیو، میں غریب بندہ، میرے کو پیسے کو نہیں ہے، انہیں چھپو۔ ابھی وہ کتاب 50 جلدیں یہاں دماغ کے اندر ہیں، یا کہیں پتہ نہیں دور کہیں پڑی ہوئی ہیں، پیسے دے دیو میں جلدی، میں نہ چھپوانی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جی لوگوں نے مرزا قادیانی کو دور حاضر کا کروڑوں روپیہ جمع کروایا، راؤنڈ بورڈ کی 80 کروڑ کے قریب وہ بنتا ہے موجودہ دور کا، وہ پیسہ جمع کروایا۔ تو مرزا قادیانی نے نا، اب سنیے، میں وہ آپ کو کتاب دکھاتا ہوں، وہ جلیل القدر دلائل سے مزین، اور بڑے دلائل، اور منہ بند کر دیے سب آریہ کے، اور یہ تو وہ دیکھیں ذرا، یہ لو جی، یہ براہین احمدیہ کا یہ جلد اول ہے، یہ لے جی، یہ جلد اول ہے جی۔ موٹے موٹے الفاظ دیکھ رہے ہیں آپ، موٹے موٹے 2-3 لائنیں نظر آ رہی ہیں یہ، اور یہ بھی پہلی جلد ایک اشتہار تھا، ہاں اشتہار تھا۔ اس اشتہار میں کیا ہے، یہ پہلی جلد تھی، جتنے مرزے نے دعوے کیے تھے نا، میں بڑا دلائل یہ انبار لگا کے رکھ دوں گا، ہونا تو یہ چاہیے تھا
کہ پہلی جلد اور اتنی موٹی تازی کوئی جلد ہوتی اور اس کے اندر چھکے چھڑا کے رکھ دیتا. مرزا قادیانی نے اس پہلی جلد کے اندر صرف شکریہ ادا کیے ان لوگوں کے اور وعدے کچھ کیے ہیں کہ مجھے پیسے جمع کراؤ. کچھ لوگوں نے پیسے دے دیے ہیں, تسی اور کراؤ, اور چاہیے نے پیسے لے آؤ, پیسے لے آؤ. ہاں جی, پیسے بس پیسے, پیسہ پیسہ. وہ اشتہار پیسوں کے اوپر تھا. جب یہ پہلی جلد آئی, چھوٹا سا ایک 3-4 صفحوں کا یہ اشتہار ہے جو انہوں نے پھیلا کے بڑے بڑے الفاظ کر کے یہ 15-16 صفحے بنائے. اچھا جی, جب یہ پہلی جلد آئی نا تو جنہوں نے پیسہ دیا ہوا تھا انہوں نے گریبان سے پکڑ لیا. وہ کہنے لگے تجھے ہم نے وہ اسلام کی حمایت اور نصرت کے اوپر تو کہہ رہا تھا 50 جلدیں, تو نے ایک اشتہار دیکھ اس کو پہلی جلد رکھ دیا ہے, یہ تو اشتہار ہے. اب مرزا قادیانی کی غیرت تھوڑی سی جاگی. اس نے براہین احمدیہ کی جلد نمبر 2 جو ہے نا وہ منظر عام کے اوپر براہین احمدیہ کا حصہ 2, جلد 2 نہیں حصہ 2, وہ لے کے آیا جی منظر عام. ایک میں ذرا اس کا ٹائٹل پیج دیکھ لوں. یہ اس کا ٹائٹل پیج. اس کے اندر اس نے وہ شکوے شکایتیں کی کہ یار چنگے تسی ساڈے بندے ہو جنہوں نے پیسے جمع کرائے نے, مینوں تسی موقع تے دیو, تھوڑا جہا موقع تے دو, میں لکھتا ہوں دلائل وہ لے کے آتا ہوں, میں ویکھو انج کراں گا. تے انہاں وچوں نا 2-4 نوں گالاں بھی کڈ دتی. وہ تے انج وے او دا نک ڈنگا تے پینگا تے او تے ٹھینگا ہے. مرزے کو عادت تھی, پرانی عادت تھی اس کی گالیاں گولیاں نکال. اب جب یہ دوسری جلد آئی نہ لو اگے نال زیادہ جڑی ہے وہ سیاپا پی گیا. وہ یہ سارے نے نا او لتر پھیرے انہوں کہا تینوں ایک تے اسی پیسے دئیے تے دوجا تو سانو ذلیل کرے تے کیڑی تو اسلام دی حمایت وچ کی لکھیا ای. لو جی مرزا جی نے تیسری جلد دے ماری براہین احمدیہ. اس کے اندر مرزا قادیانی نے وہی صفائیاں دینی شروع کر. میں نے وہ بات اس لیے کی تھی, وہ بات میں نے اس لیے کی تھی, اسلام کی حمایت و نصرت کوئی نہیں, وہ چھڑ دیو, وہ گئی, وہ دور ہے. وہ اپنی ذات کے دفاع کے اندر ہی تیسری جلد شائع کر. تیسری جلد جب آئی تو رولا پھر وہی ہو گیا. کوئی جناب مرزے نے کوئی دلیل نہ دی اور بہت زیادہ لوگوں نے احتجاج کیا تو مرزا قادیانی کو مجبوراً براہین احمدیہ کا چوتھا حصہ لکھنا پڑا. جب 4 حصے مرزا قادیانی نے لکھے نا تو لوگوں نے وہ درگت بنائی تھی مرزا قادیانی کی, چھڑ دیو گل. اس نے میں اس چوتھے حصے کو ہی دیکھ لیں, صرف چوتھے حصے کے اندر میں یہ ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر, میں مسیح, میں یہ, میں وہ. ہاں جی, میں کے اوپر اس نے بار لگا دی. جب یہ آیا تو علماء کرام کے ہتھے یہ چڑھ گئی. علامہ غلام دستگیر قصوری رحمت اللہ تعالی علیہ, جو بریلوی مکتب فکر کے اللہ فاضل بریلوی کے ایک خلیفہ مجاز, انہوں نے جب یہ پڑھا نا تو کفر کا فتویٰ اس کے اوپر دے دیا. اچھا, یہ پہلا دنیا کا پہلا کفر کا فتویٰ تھا جو غلام دستگیر قصوری صاحب نے دیا. لو جی پہ گیا سیاپا. مرزا قادیانی دے طوطے اڑ گئے. یہ کیا ہو گئے؟ مرزا قادیانی کی بولتی بند, اور مرزا جونیئر جیل میں کہتا ہے نا تڑے مجاہد بن ڈن, وہ ہو گیا. مرزا قادیانی 25 سال خاموش رہا. 25 سال مرزے کو جرت نہ ہوئی کہ اس کا 5واں حصہ لکھ سکتا. 25 سال کے بعد مرزا قادیانی نے براہین احمدیہ کا 5واں حصہ لکھا, چھوٹا سا 5واں حصہ لکھا. اور 5ویں حصے کے لکھنے کے بعد کہنے لگا وہ اصل میں نے 50 جلدیں لکھنے کا وعدہ کیا تھا, تو 5 اور 50 میں چونکہ 0 کا ہی فرق ہوتا ہے, ایک 0 کا ہی تو صرف فرق ہے, تو لہذا وہ وعدہ پورا ہوا. مرزے نے پیسے جو پکڑے تھے 50 کے پکڑے تھے, ٹھیک ہے.
تو بہرحال بات بڑی دور نکل گئی ہے. بات یہاں سے چلی سی دلائل کی کہ مرزے نے یہ جو ڈھینگیں ماری تھیں میرے فرقے کے لوگ علم معرفت میں اتنے اس قدر کمال حاصل کریں گے دلائلوں سے اور نشانوں کی روح سے مخالفین کا منہ بند کر دے. میں کہہ رہا ہوں ان کے باپ کے پاس وہ علم نہیں تھا. ان کا منہ بند کر دے. ہاں جی زاہد صاحب آئے ہیں یہ بتائیں گے. یہ جی زاہد صاحب. جی السلام علیکم مفتی صاحب. ٹھیک ہے بس جی میں نے شروع رکھے میں ویسے ہی سن رہا ہوں نیچے کوئی مسئلہ جی سنائیں کوئی آپ ہی تو سنائیں گے تو پھر یہ تو میں آپ نہیں بندہ ہوں مفتی صاحب کوئی مسئلہ نہیں. اچھا نہیں تو لوگو جڑا لایا نا وہ قادیانی اکثر لاندے ہیں. چلو نہیں تو بہرحال یہ ہے کہ دلائل تو ان کے پیو کے پاس نہیں تھے تو انہوں نے دلائل دینے ہیں. بات یہاں سے چلی تھی دلائل سے بات چلی تھی. کیڑی دلیل بھائی سانوں بھی تو کوئی دلیل دیو نا کہ گپا مارن دا نام رکھے دلائل 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 کے انبار اور یہ تو وہ گپا کہانیاں. سیم یہی کام مرزا جونیئر جیل میں بھی کر رہا ہے. اور میں نے دکانیں بند کر دی ہیں اور فرقوں کی دکانیں فرقے ختم ہو گئے فلاں فرقہ ختم فلاں مولوی ختم وہ بھی گیا اس کو بھی میں نہیں مانتا اس کو بھی نہیں مانتا. بس یہی کام مرزا قادیانی کا تھا اور یہی مرزا جونیئر جیل میں کا ہے. جو کام قادیانی پوری زندگی کرتے رہے ہیں وہی کام مرزائی کر رہے ہیں مرزا جونیئر کے فالوور. بس ایک ور کے دو میں. جی بات کریں جی. مفتی صاحب وہ مرزا صاحب کا کہتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ قادیانی لا گراف تو بہت مارتے ہیں جب ان سے سوال پوچھا جائے تو جہاں سے نکلتے ہیں وہیں گھس جاتے ہیں. وہ کس ایسا محاورہ ہے؟ جی ایسا ہی ہے. وہ حیات احمد ہے صفحہ 350 ہے جلد اول ہے. وہ پورا آپ سنا دینا کس طرح کہتے ہیں. وہ ہے جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جاہلوں کے روبرو تو بہت لافظہ مارتے ہیں مگر جب کوئی دامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے. جزاک اللہ. بس ایسے ہی بس کچھ بھی نہیں ہے. ہم کوئی صحت مند مکالمے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہیں پہ یار کوئی مخالف ہو ایسا تگڑا قسم کا مخالف ہو کوئی دلائل دے مزہ آئے. کوئی کچھ بھی نہیں یار یقین منو. نہ ہی قادیانیاں چ کوئی بندے دا بچہ سانو اج تک لبا نہ مرزائیاں چ کوئی لبا. دو میں ایکو ورگے. گل کرو کہ تگڑی جی گل کرو یار. اگلے نو تسی مطلب ہے کہ سوچن دے مجبور کر دیو. کدے بھی نہیں کدے ویکھیا ہی نہیں کوئی. ہوں تو ساڈے علم نو زنگ لگتا ہے پیا. گپاں کہانیاں ادھر ادھر دیا کوئی گالاں گولاں کڈ کے آخری حل ہوتا ہے گالاں. ہاں جی بچے باز ہو تم بچے باز ہو تم لونڈے باز ہو تم کڑی باز ہو تم. ایتی فلسفیاں دل نو دے کے رکھو نپ کے رکھو قادیانی میں نپ کے رکھو. مفتی صاحب اگر یہ نہیں کریں گے اس طرح کی باتیں تو پھر مرزا صاحب کے کردار پر بات آ جاتی ہے نا. تو یہ مرزا کا کردار پہ بات ہی نہ ہو اس لیے اصل میں مرزے کو چھپانے کے لیے مرزے کی رنڈی بازی وہ بچے باز تھا وہ خود بچے بازی کرواتا تھا رجولیت کی طاقت کے اظہار کرواتا تھا. یہ اسی چیزوں کو پردہ ڈالنے کے لیے تو یہ انہوں نے پلان کیا کہ مولویوں کے اوپر ڈالو یہ چیز کہ یہ مولوی یہ کام کرتے ہیں. سمجھے کہ نہیں یہی ہے بس اور کچھ بھی نہیں. یہ اس طرح کی کام کر کے نا سمجھو اب ہم نے جواب دے دیا اب ترقی کر رہی ہے قادیانی ترقی کر رہی. اس چیز کا نام انہوں نے ترقی رکھا ہے. اس چیز کا نام انہوں نے رکھا ہے جی ہم نے جواب دے دیا ہوا ہے. جب کسی دنیا کے کسی قادیانی سے بات کریں گے وہ آپ کو یہ ڈائلاگ لازمی بولے گا ہم نے تو اس کا جواب دے دیا ہوا ہے. وہ دے دیا ہوا بڑی دفعہ دے دیا ہوا. وہ جواب وہ اس طرح جواب دیتے ہیں کہ میں گیا سوراب کراچی سے میں رہتا ہوں تو میں اسی طرح سوراب روڈ گیا وہاں سے حیدرآباد گیا حیدرآباد سے سکر گیا وہاں سے میں نکلا موٹر وے سے پشاور گیا اور میں نے آپ کو جواب دے دیا مرزا صاحب سچے ثابت ہو گئے. اسی طرح وہ جواب دیتے ہیں. چلو یار ایک لطیفہ سنو یار پھر میں جانا ہے. لطیفہ سنتے جاؤ جاندے
ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ सूਰਾਂ ਦੇ मुंह जमदियां तरीके होते हैं। बचपन का इसका एक वाक्य है। ये जो कादियान है ना, अभी जो गांव है, ये पहले छप्पड़ था यहाँ, जिस जगह मिर्जा दफन है ना, यहाँ छप्पड़ था, पहले छप्पड़ होता था, उसको ढाब कहते, ढाब छप्पड़, ठीक है, पुराने जमानों में होते थे, अभी भी कहीं कहीं होंगे, गोरों का फार्म बन गया है ना। हाँ हाँ। अब क्या है बचपन का उसका वाक़या, सीरतुल महदी सफ़ा 366 और कादियानियों की हदीस नंबर 413। खाकसर अर्ज करता है, हज़रत साहब फरमाया करते थे कि हमें खूब तैरना आता है, और फरमाते थे मैं एक दफ़ा अवाइल उम्र में ढाब के अंदर डूबने लगा था और एक बूढ़े उम्र रसीदा आदमी ने मुझे पानी से निकाला था। वो शख्स कोई अजनबी आदमी था जिसे मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था और ना बाद में देखा। नीज खाकसर अर्ज करता है कि एक दफ़ा घर के बच्चों ने चंदा जमा करके कादियान के ढाब के लिए एक किश्ती जेलम से मंगवाई थी। जेलम इसका वो था ना, मखसूस एरिया था, ये पहले ज़माने से चलता आ रहा है जेलम, और मिर्ज़ा जूनियर जेल में भी उन्हीं की औलाद है ये। अच्छा जी, एक किश्ती जेलम से मंगवाई थी और हज़रत साहब ने भी इस चंदे में एक रकम अनायत की थी। तो ये है जी वो कादियान के गटर के अंदर, गटर ही था वो छप्पड़ जहाँ गंद टट्टी मूत्र होता है, हाँ जी, और जानवरों की गलाजत और जो भी है, उसके अंदर मिर्ज़ा कादियानी नहाता था बचपन के अंदर, और वो टट्टी मूत्र जो था वो मिर्जे के मुंह के अंदर गया। ये मिर्जे ने कादियान का टट्टी मूत्र खाया पिया हुआ है, वो देखे वो लिखा हुआ है डूबने लगा। तो यकीनी सी बात है, जब डूबने लगा तो पानी अंदर गया तो होगा ना, हाँ जी, उंज बंदा किंज डूब सकता है जी, कुछ ना कुछ तो पानी अंदर जाता ही है ना जी। तो ये एक लतीफ़ा है, तो इस लतीफ़े के साथ मुझे इजाज़त दें भाई, और रब रखा, टाइम काफ़ी हो गया है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, रब रखा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।